Here is a topic to cover all the contents. Introduction, basically expansion of Naxalism, historical review, stages of Naxal movement, present scenario, basically unification of all Naxal groups, mines means IED, ambush, asymmetric warfare organization, basically political and military organization, protection and mobility, government plan, challenges, solution and conclusion. We can throw light on the basic elements for responsible to need for LWE. This is some mathematical methods to know about Naxalism. Effect of Maoist movement is represent to N. N means Naxalism. Physical features of particular an area, PH, forest cover area, literacy rate of Maoist affected area, poverty of that particular area, means of transport and communication available in the area, density of population, development and developmental condition is represented to D. The study shows that the effect of Naxalism increase when the physical features, forest cover area and poverty increase proportionate in an area. So we can say Naxalism is proportionate to physical features, forest cover area and poverty. So that this equation first is completed. And the other hand, similar in the we can study shows that the effect of Naxalite increase when the literacy rate, means of transport and communication, density of population decreased proportionate in an area. So we can say Naxalism or Maoism or left-wing extremism opposite to proportional in literacy rate, transport and communications, population density and developmental issues. So this is equation 2. When we combine both equation number 1 and 2, we find this equation. This is a simple formula to know about the propensity of insurgency in an area. Naxalism effect could be 0 when any one element of numerator is 0, and other hand Naxal effect could be disastrous when any one elements of denominator are 0. Expansion. Everybody know how today the birth of Naxalism and growth of Naxalism. Basically, you can say Naxalism start from Naxalbari to Kolkata, Telangana and go to Bastar and other part of area. Here we can see the remarkable stages of growth of Maoism in India by various points. First stage is start from Naxalbari to Telangana via Kolkata and Bihar. Second stage is start since 22nd April 1980 by Kondapalli Sitaramaiah to from CPI ML PWG, popularly known as PWG. CPI, Communist Party of India, ML, Marxist Leninist,
People's War group. Third stage start after unification of various Naxalite group in different part of India. आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं कि उसमें जो आइडियोलॉजी है ये माओविज्म पे था, सेकेंड में मार्क्सिस्ट लेनिस्ट माओविस्ट पे था। ये दोनों में मोड ऑफ ऑपरेंडी आप देख सकते हैं बहुत आइडियलिस्टिक थे और बाद के दोनों ऑपरेंडी रियलिस्टिक थे। रिकग्निशन को आप देख सकते हैं नेशनल लेवल पर था और बाद के दो में इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन मिला था इनके ग्रुप को। इफेक्टिव एरिया आप देख सकते हैं लिमिटेड एरिया था, बाद में ये रीजनल एरिया और थर्ड स्टेज में वास्ट एरिया आप इसको देख सकते हैं। ये जो स्टेजेस को फिर से देख सकते हैं, गेन इनका था लिमिटेड इम्पैक्ट, दूसरा जो स्टेज था गुरिल्ला जोन फॉर्म करना था और थर्ड स्टेज में बेस एरिया बनाना था। कॉन्फ्लिक्ट में देख सकते हैं लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था और गुरिल्ला वार था लिमिटेड और थर्ड स्टेज में मोबाइल वार पे था। इफेक्टेड क्लास देख सकते हैं पीजेंट क्लास था, किसान इस पे जुड़े हुए थे। सेकंड में पीजेंट क्लास के साथ ट्राइबल ग्रुप्स था और थर्ड स्टेज में पीजेंट क्लास, ट्राइबल ग्रुप्स एंड बैकवर्ड क्लासेस भी थे इसमें। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं CPI-ML लिबरेशन ग्रुप, CC ग्रुप, सेंट्रल कमेटी बोलते हैं, विनोद मिश्रा का ग्रुप, रेड फ्लैग ग्रुप, RCCI का ग्रुप है। और सेकेंड स्टेज में CPI-ML PWG, इसके पीपल्स वार, पार्टी यूनिटी, MCCI का है। और 2004 के बाद ये CPI माओविस्ट के नाम से है। इसके प्राइम लीडर भी अलग थे, चारू मजूमदार है, कानू सन्याल है, विनोद मिश्रा है, सत्यनारायण रेड्डी है। उसके बाद आप देख सकते हैं सीतारामैया है, गणपति है, चंद्रमौली है, ऐसे प्राइम लीडर थे। आगे आज़ाद है, गणपति है, किशन है और कोबड़ है, बसव राजू है, हिड़मा है, ऐसे कई लीडर इसमें थर्ड स्टेज में मिलता है। यूनिफिकेशन आप देख सकते हैं, हियर इज़ यूनिफिकेशन चार्ट टू नो अबाउट द जर्नी ऑफ नक्सल ग्रुप्स। ये 1980 में CPI-ML PWG आंध्र प्रदेश में बना था, CPI पार्टी यूनिटी बिहार में है। आप RCCI MCCI वेस्ट बंगाल का आप इसको देख सकते हैं कब कब ये मिला। 98 में दो बड़ा ग्रुप था, CPI-ML पार्टी यूनिटी और PWG मिल करके PW बना 98 में, और MCCI जो बना था 2003 में, कई ग्रुप मिलके ये बाद में 2004 में एक हुए थे। इसको फॉर्म किया पैन इंडिया ग्रुप CPI माओविस्ट के नाम से। इसको आप यूँ समझिए कि माओ ने एक आयल डिप्लोमेसी एक शब्द दिया था कि जैसे एक पानी का थाली में भरा हुआ अलग अलग आयल ड्रॉप कर दें तो अलग अलग जगह प्रभावित होता है, बाद में उसको जोड़ दें तो एक बड़ा ग्रुप बन जाता है। तो ये छोटे छोटे ग्रुप को जोड़ करके एक ग्रुप बनाने का था, ये जो बना है हमारे बीच में। ये माइंस के बारे में करते हैं। नक्सलाइट यूज माइन एज ए ग्रेट टेक्टिकल टूल्स सिंस 1989 बाय द हेल्प ऑफ श्रीलंकन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप LTTE। Previously they use gunpowder in mining. When security personnel use anti-mine vehicle, Naxalite use ammonium nitrate for mining purpose. Ammonium nitrate is easy available for as agriculture fertilizer. अमोनियम नाइट्रेट ने जो एंटी व्हीकल माइंस को भी उड़ाने लग गया, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो एंटी व्हीकल माइन यूज़ कर रहे थे लगभग वो बहुत कम हो गया है। इसका जो ऑपरेट करने का सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, बूस्टर होता है और एक खोल होता है, केस होता है। ज़्यादातर नक्सली खोल के रूप में बाल्टी को इस्तेमाल करते हैं या कुकर को इस्तेमाल करते हैं, कई बार उसको हम देखते हैं प्रेशर बम के रूप में। Aim of ID laying for LWE: to kill security forces, to injure security forces, to harass security forces, to create fear among security forces, to stop reduce the movement of security forces, to stop entrance in the jungle of security forces, to secure own shelter, own camps and own training center, meeting area aids। अभी आपको पढ़ने में आ रहा होगा कि करीबन 3-4 दिन पहले आंध्र प्रदेश
और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है गुंटूर और बस्तर के बीच में एक सर्रेगुड़ा पहाड़ के पास करीबन 150 से ऊपर नक्सलियों को घेर के सिक्योरिटी फोर्स के 10,000 सिक्योरिटी फोर्स ने घेर के रखा हुआ है और वहाँ तक पहुँचने के लिए करीब करीब 100 से ज़्यादा जो माइंस को डिटेक्ट करके हटाया है। तो ये बताता है कि अपने कैंप को सिक्योर करने के लिए भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो अभी क्या होगा आगे पता नहीं, अभी वो ऑपरेशन जारी है। एक दिस इज़ द सिंपल डायग्राम फॉर माइन लेइंग। आप देखे होंगे कि सुरक्षा बल का गुजरने का जो रास्ता है, बीच में एक किलिंग जोन होता है। ये किलिंग जोन में बारूदी सुरंग लगाते हैं और उसका तार जो है मोर्चे तक जाता है और मोर्चे एक प्रकार का सुरक्षित पत्थरों का एक एरिया रहता है, वहाँ से उसको उड़ाना होता है। और हम जानते हैं कि जो बारूद है, गन पाउडर या आपका अमोनियम नाइट्रेट, इस सॉलिड स्टेट में होता है। जब वो बर्न होता है, जलता है, तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड स्टेट से गैसियस फॉर्म में जाने में उसको लगभग 200 गुना ज़्यादा जगह चाहिए। तो उससे होता ये है कि जो उसका खोल होता है उसको फुल ताकत से तोड़ता है वो। तो यदि बाल्टी हो या कुकर जैसे कोई चीज़ लोहे का हो तो उसको खूब ताकत से तोड़ने से आसपास गुजरने वाले वाहन, चाहे एंटी पर्सनल हो या एंटी व्हीकल माइंस हो, उसको उड़ा देता है। तो ये बेसिक एक सिंपल फार्मूला है, पर ये इसका ओरिजिनल है जो आज यूज़ होता है। जो किलिंग जोन के बाद यदि कोई व्हीकल को उड़ाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्स यदि कोई किसी बस में या गाड़ी में एक दो तो बैठे नहीं, करीबन 20-25 बैठे रहते हैं गन लेकर, सारे ख़त्म नहीं होते। तो कुछ सिक्योरिटी फोर्स आसपास के जो छुपने की जगह होता है वहाँ छुप करके फायर करते हैं। तो उससे बचने के लिए जहाँ जहाँ पर वो छुपने की संभावित जगह होती है, सभी जगहों पर वो बम लगाते हैं अलग अलग मोर्चे से ऑपरेट करने के लिए। तो बेसिकली अभी जो होता है वो इसी प्रकार का होता है। ये जो एम्बूस है, नक्सली कैसे एम्बूस डालते हैं उसके प्रकार से 2 प्रकार के एम्बूस हैं। बेट और वेट एम्बूस बोलते हैं, सामारू से चारा बोलते हैं, और एक को इंतजार का एम्बूस बोलते हैं। चारा को गरी एम्बूस भी बोल देते हैं भाई लोग। जैसे मछली को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है, वैसे ही किसी गांव में सरपंच को मार देंगे तो मालूम है पुलिस वाले या सिक्योरिटी फोर्स वहां जांच के लिए आएगी, तो प्राय लौटते हैं जब उनका जंगल के अंदर जाने और आने का सेम रास्ता होता है। तो आप देखेंगे 90% एम्बूस जो है ये इसी प्रकार होता है, चारा डालने वाला। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस गांव आता है और वहाँ से उसी रास्ते से लौटना होता है, तब वो उसको नष्ट करने के लिए इस एम्बूस को यूज़ करते हैं। और ये रूटीन के एम्बूस, वहाँ वीकली बाज़ार लगता है, सोमवारी मंगलवारी बाज़ार ऐसा, तो उस बाज़ार को रूटीन में के इसको इस्तेमाल करते हैं। ये नक्सलाइट का जो एम्बूस पार्टी है ये अलग अलग नाम से होता है। इसका असाल्ट ग्रुप होता है, सीजिंग ग्रुप होता है, स्कॉट ग्रुप होता है, स्टाफ ग्रुप होता है, रिज़र्व पार्टी होता है और अदर ऐसे कई प्रकार से होता है जो एम्बूस डालते हैं नक्सली, उनका ग्रुप है। तो ये जो उनका जो खुद किए हैं, पूरा दुनिया भर में जो इंसर्जेंट ग्रुप काम करते हैं उसके हिसाब से इन्होंने डेवलप करके रखा हुआ है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का एम्बूस है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े लोग हैं, ज़्यादातर हम इनको जानते हैं। एम्बूस टाइप जो है, अपॉर्चुनिटी का एम्बूस होता है, प्रिपरेशन एम्बूस, नियर एम्बूस, फार अवे या रिमोट एम्बूस, हरासमेंट एम्बूस, डिस्ट्रक्शन एम्बूस, ऐसे कई एम्बूस होते हैं। और एम्बूस फॉर्मेशन भी है, लाइन शेप है, एल शेप है, जेड शेप है, वी शेप, ट्रायंगल शेप एंड बॉक्स शेप एम्बूस, ऐसे कई प्रकार का एम्बूस है। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं आगे। एम्बूस फॉर्मेशन है, ये लाइन शेप एम्बूस है। आप देख सकते हैं किलिंग जोन है। किलिंग जोन में जब कोई नक्सलाइट मूव करता है तो एक एरिया में नेचुरल बाधा होता है, तो उसके हिसाब से वो उसको एम्बूस को किलिंग जोन में नक्सली को फंसाते हैं। इसी का लाइन शेप का अलग है, जिसमें पूरा ख़त्म करने के लिए बनाया गया है एम्बूस जो है, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। ये एल शेप एम्बूस है। एल शेप में एक देख सकते हैं कहीं पर
पगडंडी है जो ऐसे क्रॉस करता है एल शेप में, और वहाँ कहाँ पर फंसाना है आप देखेंगे। जो फायर करने का जो है वो बिल्कुल ये होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए अपने ओन ट्रुप, और नक्सली को कैसे मारना है किलिंग जोन में उसके बारे में मतलब दिया हुआ है। ये जेट शेप का है, एम्बुश करने का है कि कैसे जेट शेप में हम नक्सली को फंसाएंगे और इसको करेंगे उसके बारे में। ये टी शेप एम्बुश का है, दोनों तरफ प्राकृतिक बाधा के बीच में फंसा करके कैसे हम करते हैं एम्बुश के लिए, तो मोर्चा कहाँ बनाना है उसके बारे में। ये वी शेप का एम्बुश होता है, वी शेप एम्बुश में किलिंग जोन में नक्सली को फंसाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करता है उसके बारे में है। ये ट्रायंगल शेप का एम्बुश है जिसमें चारों तरफ यदि नक्सली के बीच आप फंसे हैं तो कैसे इसको करना है उसके बारे में। परंतु ट्रायंगल शेप एम्बुश का एक तरीका है कि पहले उसको परेशान करने का, और दूसरा जो है डिस्ट्रॉय करने का ट्रायंगल शेप का एम्बुश होता है। ये अब जो रिसेंट समय में ट्रायंगल शेप और बॉक्स शेप सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब नक्सली को हम अपने ट्रायंगल शेप में या बॉक्स शेप में, या जिसे आम भाषा में बोलते हैं हम चारों तरफ गोल घेरा बना करके निकलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस आकार पे अभी आपका एम्बुश जो है लग रहा है, बॉक्स शेप एम्बुश सबसे ज़्यादा लग रहा है। इसी एम्बुश को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जिसमें उनको सिक्योरिटी फोर्स को बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है। ये जो है इमीडिएट एम्बुश एक्शन के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि एम्बुश करना है नहीं करना है, नक्सली दिखा तो हाँ करे, नहीं करे आगे बढ़े, उसके बारे में है। ये अलग अलग प्रकार का एम्बुश है। ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, इसमें 3 प्रकार का वॉर देख रहे हैं जो माओविस्ट मेनली एंड अल्टीमेट गोल जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर को अपग्रेड करके मोबाइल वॉरफेयर में जाते हैं, उसको अपग्रेड करके पोजिशनल वॉरफेयर में जाना है। माओविस्ट मेन एंड अल्टीमेट गोल इज़ टू कंट्रोल एंड फॉर्म पीपल्स गवर्नमेंट बाय मिलिट्री मीन्स। पीपल्स गवर्नमेंट मीन्स उनका खुद का सरकार होना चाहिए, वो चाहते हैं खुद का सरकार बनाने के लिए। ये 3 चरण का वार करने का उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है। बेसिकली ये प्रोटेक्टेड पीपल्स वार का ये जो 3 चरण है, गुरिल्ला वार, मोबाइल वार, पोजिशनल वार, हम इसको ऐसे भी उसको जान सकते हैं। फाइटिंग स्क्वाड जो होता है इसमें गुरिल्ला स्क्वाड होता है लड़ने वाला, पीपल्स गुरिल्ला आर्मी होता है और बहुत छोटा यूनिट होता है। इनका मेन एरिया जो मेन टारगेट जो होता है टू बिल्ड गुरिल्ला बेस एरिया, गुरिल्ला बेस इसको बनाना, ये उनका उद्देश्य होता है। गुरिल्ला बेस एक प्रकार का 5-6 गांव के जोड़ करके एक छोटा एरिया होता है घने जंगल का, जो कि सड़क मार्ग यहाँ से बहुत दूर रिमोट एरिया में छोटा गुरिल्ला बेस बनाते हैं। आसपास हमला करो और गुरिल्ला बेस में छुप जाओ। दूसरा, ये गुरिल्ला बेस बनाना अपग्रेड होता है। कई गुरिल्ला बेस जब बन जाता है तो ये मोबाइल वार में अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो मोबाइल वार जब होता है तो इसका जो मिलिट्री ग्रुप विद गुरिल्ला स्क्वाड पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बनाते हैं, PLGA जिसको बोलते हैं वो। और अभी 2 जगहों पर PLGA इनका गठन है। एक बड़ा यूनिट होता है जो काम करता है, जिसमें उनका बटालियन बोलते हैं। अभी 3 बटालियन है, एक बटालियन लगभग ख़त्म हो गया, 2 ऑपरेट हो रहा है। साउथ बस्तर में जो अभी घेर के रखे हैं वो बटालियन नंबर 1 उनका है। इनका मेन टारगेट होता है टू बिल्ड लिबरेटेड एरिया, लिबरेटेड मुक्त क्षेत्र जिसको बोलते हैं। मुक्त क्षेत्र मतलब जो बेस एरिया है, ऐसे 8, 10, 15 बेस एरिया को और उसके बीच के एरिया को जोड़ करके जो एरिया बनता है उसको लिबरेटेड एरिया बोलते हैं। और लिबरेटेड एरिया में इनका खुद का गवर्नमेंट बनता है, जिसको आजकल वहाँ जनताना सरकार कहा जाता है। तो पीपल्स गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये इनका मोबाइल वार का है। जब मोबाइल वार का चरण कंप्लीट होगा, ये फ्यूचर का है, तो उनका लक्ष्य है पोजिशनल वार में जाना है। ये कंप्लीट मिलिट्री ग्रुप इंक्लूडिंग एयर एंड नेवल पावर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी गठन, चाइना में जैसे PLA जिसको बोलते हैं, तो भविष्य में PLA बनाएंगे, ऐसा इनका भी एक है। और इनका यदि जो 9वां कांग्रेस 2004 के पश्चात जो हुआ था, उसको यदि आप स्टडी करेंगे तो इनका जो टारगेट है कि 2052 तक दिल्ली के गद्दी में बैठना है। तो देखिए 2052 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये पोजिशनल वार में जाएंगे। इनका टारगेट है टू बिल्ड पीपल्स पावर एंड
पीपल्स गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं खुद की सरकार गठन करना। तो बेसिकली जो माओविस्ट लोग हैं एक प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी है, उनको चुनाव जीत करके सरकार नहीं चाहिए, उनको मिलिट्री मीन्स से उनको सरकार चाहिए, गन के दम पे सरकार चाहिए। ये वार स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, हियर इज द स्टेजेस ऑफ नक्सल वार विथ वेरियस पॉइंट। वार है जिसके बारे में बताया, गुरिल्ला वार, मोबाइल वार, पोजिशनल वार। ये जो मूवमेंट है, पहले ये गुरिल्ला वार लड़ते हैं तो वहाँ सर्वे करते हैं, फिर वहाँ प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं और कंटिन्यू प्रेजेंट करते हैं। और सेकेंड स्टेज का जो मोबाइल वार है, जिसमें बेस एरिया बनाते हैं, उस दूसरे वाले जो है वो एक्शन है शहरों में और कैपिटल्स में। जो पहला जो एक्शन होता है डिफेंसिव होता है, जिसको वो लोग बोलते हैं मारो और भागो, हम सभी जानते हैं। दूसरे में ऑफेंसिव है, अटैकिंग करने का, और थर्ड में फेस टू फेस वार में जाने का है। इनका उद्देश्य है पहले में गुरिल्ला वार में टू पैरालाइज गवर्नमेंट मशीनरीज, सेकेंड स्टेज में टू क्रिएट जनताना सरकार, जिसको पीपल्स गवर्नमेंट बोलते हैं, और थर्ड स्टेज जो है टू टेक ओवर गवर्नमेंट पावर। इसका जो एक्सपेंशन के बारे में है, जो फैलाव के बारे में, तो पहले चरण में फॉरेस्ट एरिया और रिमोट एरिया में इनको फैलना है, सेकेंड में कंट्री साइड में या प्लेन एरिया गांव क्षेत्र में जाना है, और थर्ड स्टेज जो है टुवर्ड्स टाउन, सिटी एंड मेट्रोस, जिसको हम शहरी अर्बन नक्सलिज्म बोलते हैं, वहाँ पे वो धीरे धीरे जाने का है। तो ये इनका वार स्ट्रेटजी है। CPI माओविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना बहुत टेढ़ी काम है, क्योंकि बेसिकली ये बहुत कॉम्प्लेक्स इनका होता है। सबसे बड़ा इनका ऑर्गेनाइजेशन संगठन है पार्टी कांग्रेस। बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। ये वास्तव में पार्टी कांग्रेस एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो डिसीजन लेता है 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। घोषित रूप से इन्होंने 9 बार कांग्रेस किया है, पर रिसर्चर के हिसाब से इनका 10 कांग्रेस हो चुका है। हालांकि 10वां कांग्रेस को इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इनका सबसे बड़ा जो वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको COC बोलते हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और COC ही पूरा निर्णय लेती है इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। इसके नीचे पॉलिटिकल विंग शुरू होता है, जिसको पॉलिट ब्यूरो बोलते हैं। पॉलिट ब्यूरो के नीचे रीजनल ब्यूरो होता है 5, ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ रीजनल ब्यूरो, साउथ वेस्टर्न रीजनल ब्यूरो, उड़ीसा छत्तीसगढ़ रीजनल ब्यूरो, ईस्टर्न और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो। इसके नीचे स्पेशल एरिया कमेटीज़ होता है, ज्वाइंट उत्तर स्पेशल एरिया कमेटी है, और उसके नीचे साउथ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल स्पेशल एरिया कमेटी है, और 13 राज्यों में स्टेट कमेटियां हैं। इसका पॉलिटिकल विंग लोअर स्टेज पर डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, सब डिस्ट्रिक्ट कमेटियां, एरिया कमेटी, टाउन सिटी कमेटी, ग्राम कमेटी, संघम एंड अदर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स मिलिशिया का है। और ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फिर शुरू वही पार्टी कांग्रेस से है, जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है। उसके नीचे सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होता है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नीचे जैसे पॉलिटिकल में पॉलिट ब्यूरो था, यहाँ पर सेंट्रल मिलिट्री कमेटी है। इसके नीचे स्टेट मिलिट्री कमेटी है और स्पेशल जोनल कमेटी। ये जो जोनल कमेटी होता है, ये जंगल एरिया में होता है, जहाँ डायरेक्ट फाइट लड़ रहे हैं। जैसे नॉर्थ तेलंगाना का है, दंडकारण्य है, और आंध्रा ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी है। इसके नीचे सब जोनल कमेटी या रीजनल कमेटियाँ हैं। और इसका जो मिलिट्री विंग में जो मेन फोर्सेस है, इसको डिस्ट्रिक्ट डिविजनल या जोनल कमांड बोलते हैं। जब MCC के साथ जुड़े थे तो बिहार, झारखंड में ये जोनल कमांड बोलते थे, परंतु छत्तीसगढ़ या आंध्रा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में उसको डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल कमांड बोलते थे। तो इक्विवेलेंट है ये, उसको बिहार और झारखंड का ग्रुप को हटाया नहीं, सेम चलता है। और इसके नीचे सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न और सब जोनल कमांड, कंपनी कमांड, प्लाटून कमांड, स्क्वाड कमांड के रूप में बोलते हैं। और इसका जो मिलिट्री विंग दूसरा है, वो भी आप देख सकते हैं, जो सेकेंडरी फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट कमांड है, पीपल्स गुरिल्ला आर्मी। उसके नीचे सब डिस्ट्रिक्ट कमांड है, एरिया कमांड है, ARD बोलते हैं। स्क्वाड है, इसको दलम बोलते हैं, और लोकल गुरिल्ला स्क्वाड है, और GRD का है, और ये उनका एक सेकेंड कमांड है। गवर्नमेंट प्लान के बारे में थोड़ा स्टडी कर लें। गवर्नमेंट के प्लान आप देख सकते हैं।
ये पहली बार है बहुत सालों बाद कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने क्लियर मैसेज दिया है कि हमको 31 मार्च 2026 तक इसको ख़त्म करना है। और या फिर आप नक्सलियों को चेतावनी है कि आप मरने के लिए तैयार रहो या डायलॉग के लिए तैयार रहो। और ऐसा क्लियर मैसेज सेंट्रल स्टेट का बहुत कभी ऐसा हुआ नहीं जो अभी हुआ है। इसके लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट प्लान हुआ है। अभी एक अच्छा चल रहा है प्लान छत्तीसगढ़ में जिसको नियत नीलानार बोला जाता है, आपका एक अच्छा गांव। आपका एक अच्छा गांव मतलब हर आदमी के लिए है कि उस गांव में कितना पुल पुलिया निर्माण है, स्कूल आंगनबाड़ी है, अस्पताल है, राशन दुकान है, बाजार है, बिजली है, पानी है। ऐसे बहुत सारे योजना गांव में लागू है। और जिस गांव को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ कोई नक्सली नहीं है तो उस गांव को गवर्नमेंट की ओर से 1 करोड़ मिलता है। तो एक बहुत बड़ा है। तो हर गांव वाला अभी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। और हम कल्पना करते हैं कि 20 नक्सली मारे तो 20 वर्दीधारी होते हैं, पर वर्दीधारी से डेंजरस गांव में जो उनका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो गांव का यदि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जब सरेंडर करता है, गवर्नमेंट के पक्ष में आता है, तब उनको 1 करोड़ मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और यदि आप देखेंगे कि पिछले 14 महीने में वहाँ पर 300 से ज़्यादा नए मोबाइल टावर बने हैं और 40 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए हैं, जिसको वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप लगा है अलग से। और इस में लगभग 379 14 माह में नक्सली मरे, जिसमें 12 तो बहुत टॉप लीडर का नक्सली है जिसको 25 लाख से ज़्यादा के इनाम इस पर रिवार्ड था। और इसी 14 महीने में 1116 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 809 नक्सलियों को गिरफ्तार अलग किया गया है। तो ये जो आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि अभी जो हाईली इफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट केवल 4 बचे हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर, चारों छत्तीसगढ़ में। बाकी सब जगह हाईली इफेक्टेड नहीं है, बहुत कम है। और अभी इन 14 महीना में 800 किलोमीटर नक्सल इफेक्टेड एरिया में सड़क भी बना है। तो ये जो तेज़ रफ्तार में जो सक्सेस मिला सिक्योरिटी फोर्सेस का, इसके पीछे कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना। इससे पहले अंतर क्या हो गया है कि इससे पहले नक्सल एरिया में जो ऑपरेट करने के लिए फोर्स जाता था उसमें सबसे बड़ा फोर्स का ग्रुप होता था, वो प्लाटून स्तर का होता था। हम 35 आदमी जानते हैं प्लाटून में होता है। और उसको लीड करने वाला व्यक्ति या तो हवलदार होता था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता था, या सब इंस्पेक्टर। उससे बड़ा ग्रुप कभी लीड करने नहीं जाता था। परंतु अब क्या हो गया है कि एक बटालियन स्तर तक के यानी 500 से लेके 1-1000 सिक्योरिटी फोर्स अंदर घुसता है और इसको लीड करने वाला व्यक्ति डीएसपी और एडिशनल एसपी स्तर का होता है। तो आप समझिए कि एक सब इंस्पेक्टर स्तर का व्यक्ति और एडिशनल इंस्पेक्टर के दोनों के ब्रेन बहुत अंतर आ जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इससे पहले जो फोर्स काम कर रहे थे उसमें सेंट्रल फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसे फोर्स थे या पुलिस के फोर्स थे। पर पिछले कुछ सालों में जो लोकल आदिवासी की बड़े पैमाने पर जो भर्ती हुआ है और ट्रेंड किया गया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है डीआरजी के रूप में, बस्तर फाइटर के रूप में, दंतेश्वरी फाइटर, तो जो लोकल जो भर्ती हुआ है बेसिकली नक्सली ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा सफल वही है। तो जो हमने भी ये देखा था पंजाब में इसको ख़त्म हुआ था, तो आखिरी में पंजाब पुलिस ने ही मारा था आतंकवादियों को। तो सेम वही स्थिति यहाँ है कि जो बस्तर में जो अभी लीड जो कर रहे हैं वो लोकल जो फोर्स घुसा है वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि भाषा बोली सब जानते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है। एक इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी का पहली बार बड़े पैमाने पर यूज़ हो रहा है। इससे पहले टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होता था। जो ड्रोन की हम बात करते हैं, इस ड्रोन को छत्तीसगढ़ पुलिस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम 2005-7 से कई बार बोले थे, पर वो पुलिस में जैसे एक होता है ना लकीर का फ़कीर, यानी जो मैनुअल में लिखा है वही काम करना है, न इधर जाना न उधर जाना है, वो ऑपरेट नहीं करते थे। पर जो नया बैच आ रहा है आईपीएस का या दूसरा, वो आप देखेंगे मैक्सिमम बी होल्डर घुस रहे हैं।
तो जो बी होल्डर जो नए घुस रहे हैं वो टेक्नो फ्रेंडली है, तो वो इसके अहमियत को समझे और उसके बाद ये हमारे बीच टेक्नोलॉजी आया। तो अभी जो गवर्नमेंट का नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, NTRO जिसको बोलते हैं, उसके सपोर्ट से हमारे बीच जो सेटेलाइट इमेजरीज जो मिल रहा है रियल टाइम, तो वो हमको मिल रहा है पिन पॉइंट लोकेशन, और जो ड्रोन के इस्तेमाल हम कर रहे हैं उससे पिन पॉइंट लोकेशन मिल रहा है। और तीसरा जो मैंने बताया कि जो मोबाइल टावर जो लग रहा है, तो मोबाइल से उसका लोकेशन पता चल रहा है पिन पॉइंट, और वो अब पकड़ में आ रहे हैं। हम आज जानते हैं कि शराब के नशे से ज़्यादा नशा मोबाइल का नशा है। तो इतना मोबाइल टावर हो गया है, तो गांव गांव बच्चा मोबाइल पकड़ रहा है, उस मोबाइल आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं जंगल के अंदर। और यही लत अब नक्सलियों को भी लगा हुआ है कि वो ही मोबाइल पकड़ के दिन रात बैठे रहते हैं। मोबाइल खेलना मतलब लोकेशन ट्रेस होना। तो ये एक बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है उनके इसके लिए। इसके साथ जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस जिसको बोलते हैं, एक बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिसके कारण भी ये हो गया। पहले क्या था कि शहरों में थे, अंदर कोई पुलिस जाता नहीं था, फिर इनका बेसिस हर 10-10 किलोमीटर में सड़क किनारे बना, फिर इनका बेसिस जंगल बना, मतलब जहाँ कोई नहीं है वहाँ बना। तो अब ये है कि एक बेस बना, तो उस बेस को एक टारगेट दिया जाता है कि पूरे आसपास का आपका 4 गांव 5 गांव आपके अंडर में है। तो वो बेस के फोर्स क्या करते हैं, पूरे गांव में जितने आदमी है, उस गांव में मान लो 50 घर है और 250 लोग रहते, तो हर व्यक्ति का नाम पूरा डेटा है, कौन व्यक्ति मिसिंग है, बुला अपने बच्चे को, साला नक्सली के यहाँ काम नहीं करेगा, अपील करता है या उनको बोलता है सरेंडर करवा। तो हर व्यक्ति का जानकारी है। दूसरा, उनके लिए राशन देना, उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना। जंगल के अंदर लकड़ी काट के खेत बनाए पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो अब उनका गांव में खेत जो है उसका मालिकाना हक मिल रहा है। तो गांव वाले को बहुत बेनिफिट उसके कारण हो रहा है। हम अक्सर बेस बन गया, पहले जब बेस बनता था तो हजारों की संख्या में आदिवासी आते थे विरोध करने के लिए। अब आदिवासी बोलते हमारे यहाँ बेस बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि बेस बनने से वहाँ इकोनॉमिक सिस्टम में बदलाव देखा गया है कि जब एक बेस बनता है तो वहाँ रहने वाले जो सिक्योरिटी फोर्स को दूध चाहिए, तो दूध गांव वाला देता है, गांव वाले को पैसा मिलता है। उनको सब्जी खरीदना है, गांव वाले सब्जी बेचते हैं, उनको पैसा मिलता है। किराने का सामान चाहिए, गांव वाले सामान आता है। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो। उनके मन में पहले ये बताया था गाँव वाले का कि पुलिस वाले थे विकट पीटते हैं, और जब देखा अरे पीटता ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक बड़ा चेंजेस है। अब कोई उसका विरोध नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो पॉपुलेशन का सपोर्ट जो पहले नक्सलियों के साथ था, अब वो प्रॉपर सपोर्ट वहाँ पे नहीं है। ये गवर्नमेंट का क्लियर विज़न है, हमको ख़त्म करना है। चैलेंजेस है, थोड़ा कड़वा है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। नक्सलाइट थ्रेट्स टू ऑल पॉइंट, मेनली आप देख सकते हैं नेशनल इंटीग्रिटी के लिए हमारे पास चैलेंज है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, गांधीयन फिलॉसफी को चैलेंजेस है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, नेशनलिज्म के लिए है, हिंदुइज्म को भी बहुत चैलेंजेस है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मेन चैलेंजेस है जो नक्सलियों के कारण से आया है। बेसिकली अल्टीमेट चैलेंजेस क्या है? अल्टीमेट चैलेंजेस आर व्हाट इज़ द फ्यूचर पॉलिसी ऑफ आवर इंडिया, गांधीयन और माओइज्म। हम अपने देश को गांधीवादी बनाना चाहते हैं या माओ का फिलॉसफी लाते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। हम भविष्य में जय हिंद बोलेंगे या लाल सलाम बोलेंगे, क्योंकि जहाँ नक्सल इफेक्टेड एरिया में 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मना सकते, वहाँ जय हिंद नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वहाँ आपको लाल सलाम बोलना है। तो फ्यूचर में आप जय हिंद बोलेंगे या लाल सलाम, ये भी हमारे लिए चैलेंजेस है। तो ये एक चुनौती है जिसको हमको बहुत सारा सामना करना है। इसका डिटेल एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत समय लग जाएगा, इसलिए बहुत छोटा है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ आप, क्योंकि एक एक पॉइंट हम जानते हैं। जैसे नेशनल इंटीग्रिटी है, नक्सली बोलते हैं कि मिज़ोरम एक अलग देश है, त्रिपुरा अलग देश है, पंजाब अलग देश है, जम्मू कश्मीर अलग देश है, आप कैसे स्वीकार करोगे सब अलग देश है? हम बोलते हैं भारत पूरा एक देश है, बोलते नहीं ये कई देशों का एक समूह है। तो वो तो अपने इसमें रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में है उनका कि उनको सबको अलग करना है।
तो ये हमारे लिए चैलेंजेस है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है, सॉल्यूशन के बारे में है। हियर इज सम सिंपल प्रोसीजर टू कंट्रोल और एलिमिनेट द नक्सल menace. We find out that Naxalite always fear from these three things. जहाँ सुरक्षा बल होंगे वहाँ नक्सली पीछे हट जाते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट इशूज बहुत अच्छा होता है, विकास अच्छा होता है, वहाँ भी नक्सली कम होते हैं। तो ये हमारे बीच में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जहाँ लोकतंत्र की जड़ मजबूत होगा वहाँ भी नक्सली काम नहीं करता। नक्सलियों का एक पॉलिसी है जिसको वो लोग सफाया अभियान बोलते हैं। सफाया अभियान का मतलब है जो उनका प्रभावित क्षेत्र है वहाँ न तो कांग्रेसी होना चाहिए, न भाजपाई होना चाहिए, न कोई पार्टी होना चाहिए। सफाया करो, तो वन सिंगल वॉइस उठना चाहिए, वो है नक्सलियों का खुद का। तो ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उनका सबसे बड़ा दुश्मन, इसीलिए जब भी चुनाव होता है उसका बहिष्कार करवाते हैं ताकि कोई नया लीडर पैदा ना हो। एक चीज़ है, जब भी हम नक्सल इफेक्टेड एरिया में जा करके देखते हैं कि वो कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, तो आप देखेंगे कि नक्सल इफेक्टेड एरिया में 80% लोग शांत होते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं होता। 10% गवर्नमेंट समर्थक और 10% नक्सली समर्थक होता है। और जब भी सुरक्षा बल पहुँचते हैं तो सुरक्षा बल का हाँ हाँ मिलाते हैं, नक्सली पहुँचते हैं तो नक्सलियों को हाँ हाँ मिलाते हैं। जो पावरफुल होता है उनका चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस का टारगेट नक्सली समर्थक होना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं का टारगेट गवर्नमेंट समर्थक होना चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए जो आम जनता को टारगेट लेकर डेवलपमेंट करना चाहिए, ये उनका ये है। डिफेंस के बारे में मतलब इतना ही छोटा सा कह सकता हूँ कि मिलिट्री का यूज़ केवल ट्रेनिंग के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए हो सकता है। और जो स्टेट पुलिस या सेंट्रल फोर्सेस में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस बहुत ट्रेंड होते हैं पर और इसका उपयोग नक्सली के खिलाफ बढ़िया हो सकता है। स्टेट पुलिस में 2 विंग होता है, स्टेट आर्म्स पुलिस होता है जो नक्सली गुरिल्ला खिलाफ हो सकता है, और रेगुलर फोर्सेस है लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जो डेवलपमेंट है इसको 2 हिस्सों में बांट करके आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लेके लॉन्ग टर्म का, और जो फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए हम कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बेसिक नीड्स का है, और लॉन्ग टर्म्स के लिए भी अलग अलग इसका सिस्टम डेवलपमेंट का वो आप चला सकते हैं। जो डेमोक्रेसी है, तो मैं डेमोक्रेसी की जो चर्चा कर रहा था वो लोकसभा या विधानसभा का नहीं है। ये तो वहाँ पे हो जाता है चाहे कितनों % ये हो। बेसिकली डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट लेवल का डेमोक्रेसी है, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत है, या वनोपज समिति, मंडी समिति, तेंदुपत्ता समिति, नहर समिति, वन समिति जैसे छोटा छोटा समिति जो गांव में होता है, क्योंकि छोटे समिति ही गांव का लीडर पैदा करने के लिए होता है। और ये बात देखा गया है कि लोकल एक नेता जो होता है कई पुलिस वालों से भारी होता है, क्योंकि आम जनता उसी की बात मानती है। इसीलिए नक्सली जो है किसी प्रकार का लीडरशिप पसंद नहीं करते। जो 3D फार्मूला जो आपको बताया था उसी का थोड़ा से डिटेल रूप है। अब मैं अपने नाम से इसको बनाया था जब रिसर्च कर रहा था, तो पांडे इक्वेशन। दिस इज सम एडवांस फॉर्म ऑफ टू नो अबाउट द एलिमिनेशन प्रोसीजर ऑफ LWE. दिस इक्वेशन शोज द प्रोपेंसिटी ऑफ इंसर्जेंसी। अब ये थोड़ा से लंबा है। I इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं इसका डिटेल आपका ये आपका है प्रोपेंसिटी टूवर्ड्स इंसर्जेंसी सोन बाय एन एरिया, और इसमें एक रिलीजन ग्रुप है, सोशल सेपरेट आइडेंटिटी का रिलीजन ग्रुप है, लैंग्वेज का है, एथनिसिटी का है, और फॉरेस्ट कवर एरिया का है, फिजिकल फीचर्स का है, और आइडियोलॉजिकल जो फ्लोन होता है किस एरिया में उसके बारे में है, मनी फ्लो होता है बाहर से उसके बारे में है, और ट्रेनिंग अवेलेबल होता है इंसर्जेंट को, और शेल्टर अवेलेबल होता है इंसर्जेंट को, उसके बारे में है। इसके बारे में आप देख सकते हैं कि रेशियो है पॉवर्टी ऑफ एन एरिया
रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एरिया, रेशियो है डेवलपमेंटल इश्यूज़ का किसी एरिया में, और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में है, अवेलेबिलिटीज़ ऑफ गुड गवर्नेंस का है, और सभी चीज़ यदि जीरो है तो उसके बारे में आपका फैक्टर्स है। कोफिशिएंट के बारे में भी इसके बताया हुआ है। ये इसको छोटा रूप में बेसिकली वी सी दैट ये छोटा रूप में हम इसको कैसे समझें उसके बारे में एक बताया गया है। एबव इक्वेशन डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। अब ये पार्ट्स कौन सा है? सोशल आइडेंटिटी के बारे में है, ज्योग्राफिकल फैक्टर के बारे में, एक्सटर्नल इफेक्ट के बारे में है, और इकोनॉमिकल फैक्टर है, और पॉलिटिकल फैक्टर है। तो बिल्कुल छोटे फॉर्म में उसको लाया गया है। ये नीचे उसको प्रोपेंसिटी ऑफ इंसर्जेंसी में आप इन सभी फैक्टर को देख सकते हैं। इसको एग्जामिन करें, वी कैन टेस्ट दिस इक्वेशन फॉर बस्तर रीजन। वी नो बस्तर इज एपिसेंटर ऑफ माओविज्म इन टुडेज सिनेरियो। ये बस्तर के बारे में हम सभी जानते हैं। वहाँ रिलीजन के आधार पर देखें तो सभी आदिवासी हैं, तो वो रिलीजन एक ही है, जीरो है। कोई सेपरेट आइडेंटिटी रिलीजन का नहीं है। लैंग्वेज सबका सेम है। मनी फ्लो बाहर से नहीं है, और शेल्टर अवेलेबल नहीं है। वहीं खुद मनी वसूलते हैं, और शेल्टर भी वहीं उनको खुद मिलता है। तो एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उसके बारे में है। और यदि ये जीरो है तो इसको जीरो को इक्वेशन में हम यदि जोड़ें तो नीचे इक्वेशन हमारे पास बचता है। इसमें जो एक्स ग्रुप है ये बस्तर है, सभी ट्राइबल के लिए है। वाई ग्रुप जो है फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो इसको हम कभी जीरो नहीं कर सकते वाई ग्रुप को। और जोग्राफिकल फीचर्स है, हम इसको भी जंगल ख़त्म नहीं कर सकते। और जो जेड ग्रुप है वो एलिमिनेशन हो सकता है। वी कैन एलिमिनेट वन आइडिया बाय अनदर आइडियोलॉजीज। एक यदि आइडियोलॉजी है तो उसको दूसरे आइडियोलॉजी से ही ख़त्म कर सकते हैं, मार के ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरा है गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसे आप विकास के कामों से ख़त्म कर सकते हैं। और क्यू ग्रुप जो है उसको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो एक्स और वाई को आप यदि जीरो के बराबर नहीं है तो ये देख सकते हैं अल्टीमेट फिनिश कैसे होगा। जेड ग्रुप जो फिनिश होगा वो सिक्योरिटी फोर्सेस से कर सकते हैं फिनिश, और पी ग्रुप को आप डेवलपमेंट से ख़त्म कर सकते हैं। क्यू ग्रुप को आप डेमोक्रेसी से ख़त्म कर सकते हैं। तो एल डी कैन ओवर इफ़ द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ एनी वन ऑफ जेड पी एंड क्यू, जैसे हमने पंजाब में ख़त्म किया या मिज़ोरम में ख़त्म किया, एटलीस्ट डिफेंस डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी आर नेसेसरी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ LWE। दिस इज़ द 3D फार्मूला। तो ये एक फार्मूला है। Thanks to all of you for listening me quietly, and thanks to organizer for give me an opportunity to meet all of you. Thanks a lot again.